Good morning, students. Morning, sir. Good morning, Bina. Good morning, Good sir. morning. Good morning to all of you. So once again, good morning, Bina. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9th. Okay, it's just a minute. Just wait for a second. Yes. Okay. So Anuna and Nandagirwar, are you present? अर्णव, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? अर्णव पिंगे, भूमिका, हेलो, someone reply. Yes, sir. Sir, economics, Sir, yes. आवाज आ रहा है First chapter, Palampur. Economics first chapter Palampur, है ना? Just a minute. मान लिया क्या हो रहा है सिस्टम? ओके, जस्ट अ मिनट. चैतन्य बंद करो. चैतन्य, हमारा चैप्टर रन हो रहा था ये वाला, है ना? कल वो इरिगेशन का. जस्ट अ मिनट, वही देख रहे हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला सेक्शन हमने कंप्लीट किया था. Sir, we were on HYV seed. ये वाला ना? Yes, sir, we are going to start. ओके, ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू. है ना? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ठीक है, दिस प्रोग्राम was started by the government of India. ठीक है. और वो इनिशिएटिव किस लिए था? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. क्या करना? To increase the production. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. Crops. Production of crops, especially the food grains. Okay, so the green revolution, which was introduced in late 1960, introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds, that is HYVs of seeds. Compared to the traditional seeds, the high yielding variety seeds comprise or promise to produce much greater amount of grain or a single plant. ठीक है. तो ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस होगा. ठीक है. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. अब इससे क्या हुआ कि उतने ही जमीन में क्या किया जा सकता है?
ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. due to the introduction of high yielding variety of seeds, high yielding variety of seeds को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ? More crops Zyada- can be grown. ज्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स ग्रो किए जा सकते थे, परंतु एक दूसरी समस्या थी। वो क्या थी कि HYV seeds needed plenty of water and also chemical fertilizers and just a minute pesticides to produce best result, है ना? तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया, परंतु जो एक समस्या है वो HYV seeds में कौन सी है हीरक तिवारी? What is the problem in these seeds? The problem is that, yes, हीरक तिवारी, HYV seeds, high yielding variety of seeds यूज करने में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? यस, प्रतिश्रुता, हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं? यस, प्रतिश्रुता, आंसर द क्वेश्चन। योगेश पटेल, आंसर द क्वेश्चन। While we are using high yielding variety of seeds, what are the other issues? It needed plenty of water and chemical fertilizer. Chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Okay, so the higher yield were possible only from a combination of high yielding variety of seeds, then the proper irrigation, okay, then use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Okay, now in this particular case of green revolution, the farmers of state of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first community of the farmers who try out the मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। यानी ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स स्टार्टेड हुए थे, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के किन इलाकों में ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई हैं? दीज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने कभी हार्वेस्टर से गेहूं कटते हुए देखा है? Yes, sir. Sir. अभी जरा इसको देखिए आप, ठीक है? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல गेहूं की फसल पकी हुई लगी है ना? Yes, sir. And it is a huge machine called harvester. इसे क्या कहते हैं? Harvester. बेसिकली इट इज ए कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब क्या है कि फसल को काटना, अंदर के अंदर उसकी थ्रेशिंग करके, और उसका जो दाना है दैट इज ग्रेन भी इसी मशीन के अंदर बैक साइड में इधर टैंक होता है, वहां कलेक्ट हो जाता है। ठीक है,
अब ये जो फूड ग्रेन्स, ये जो कटिंग कर रहा है ना, ये अनाज कहाँ रहता है? थ्रेशिंग के बाद में हार्वेस्टर के अंदर बहुत बड़ा टैंक है। देखो, ये जो हार्वेस्टर ने फ्रंट साइड से कटा हुआ गेहूं अंदर कर लिया, इसके अंदर एक थ्रेशिंग मशीन क्या करेगी? उस कटे हुए गेहूं में से क्या अंदर कर देगी? सीड सेपरेट कर देगी। सीड सेपरेशन थ्रेशिंग कहलाता है। अब वो जो सीड है वो इसी हार्वेस्टर के ऊपर यहाँ पर एक टैंक बना है, टैंक के अंदर सीड चला जाएगा और बाकी का कचरा कहाँ आ गया? थ्रोन आउट, नीचे। अब यहाँ पर जो टैंक है, ये टैंक में सीड ग्रेन्स क्या हो गए? फुल हो गए। क्या हो गया? सीड ग्रेन्स फुल हो गया। अब उसको निकाल के कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। वो टैंक जो है फुल हो गया। ये बगल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली है। बगल में क्या है? ट्रॉली है ना। अब ये फूड ग्रेन्स जो है ट्रॉली में, हार्वेस्टर से किसमें? ट्रॉली में ऑटोमेटिकली इसके मदद से निकाल देंगे। जो फॉरेन कंट्रीज है, अब यहाँ देखो, दिस इज सच अ बिग हार्वेस्टर। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मैंने वीडियो क्यों दिखाया, इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि ये जो एग्जांपल हमने हार्वेस्टिंग का देखा है ना, सो लगभग 50 to 60 एकड़ ऑफ लैंड, 60 एकड़ जमीन में यदि गेहूं की फसल लगी हुई है, कौन सी फसल बेटा? गेहूं की 60 एकड़ ऑफ लैंड में यदि गेहूं की फसल लगी है, तो फार्मर को यदि उस गेहूं की फसल को ह्यूमन लेबर से, है ना, मजदूरों से यदि गेहूं की फसल कटवानी है, तो मान लो वो फार्मर ने 60 एकड़ जमीन के लिए 50 लेबर हायर किए। कितने? 50 तो वो जो 50 लेबर हैं, उन्हें ये 60 एकड़ जमीन का
सिर्फ गेहूं काटने में, क्या काटने में, गेहूं काटने में गेहूं इन 50 लेबर्स को तकरीबन 20 से 22 डेज लग जाएंगे। 20 से 22 दिन में ये 50 लेबर 60 एकड़ जमीन का क्या काट पाएंगे, गेहूं। अभी तो कटा है, हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, थ्रेशिंग नहीं हुई, उसमें भी टाइम दाना- लगेगा। अभी दाना निकलेंगे ना, दाना भी निकालना है, तो दाना निकालने के लिए एक अलग मशीन होगी जिसको बोलते हैं थ्रेशर। क्या बोलते हैं, थ्रेशर। प्रेशर। अब वो जो थ्रेशर है, थ्रेशर में ये कटा हुआ गेहूं फिर से थ्रेशर में डालेंगे और उसमें से क्या ग्रेन सेपरेट होगा, ग्रेन सेपरेट होगा। तो ग्रेन सेपरेट करने में भी 10 से 12 दिन लगा, यानी ऑन एन एवरेज मान लो तो 50 एकड़ का गेहूं कट के ग्रेन निकालने तक 25 to 30 डेज का टाइम लग गया। इतनी बात आई समझ में? 1 Yes, मंथ sir. टाइम। हाँ, लगभग 1 महीना। और ये जो हार्वेस्टर जो पहले वीडियो में हमने देखा, ये मॉर्निंग में 7 o'clock को स्टार्ट कर दें तो शाम को 7 बजे तक 50 एकड़ का गेहूं काट के ग्रेन निकाल के और सारा काम कंप्लीट कर देगा। यानी मतलब 1 महीने का काम 1 दिन में ही। 1 महीने का काम 1 दिन में। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अभी Yes, sir. इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, टाइम कंज्यूम। हाँ, लेस टाइम लगा। अब वो जो लेस टाइम लगा, कम समय लगा, तो उसमें फार्मर क्या कर सकता है, गेहूं की फसल कटने के बाद तुरंत दूसरी फसल की क्या कर लेगा, तैयारी कर लेगा, है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये किसका इम्पोर्टेंस है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग। सर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सर हम लोग कोई भी बीज लेने जाएंगे किसी भी चीज का, तो हर दुकान में तो सेम ही दिखता है। तो सर HY जो सीड्स है वो उसमें कुछ डाला जाता है कि वो ऐसा ही अपने आप में ऐसा कुछ है? हाँ, अब ध्यान से सुनो, क्या होता है, जो HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं एग्रीकल्चरल लेबोरेटरीज में डेवलप करते हैं। किसके जरिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए। कौन सी मेथड संध्या, आवाज हाँ, कौन सी मेथड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कौन सी मेथड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन मेथड में साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, आप लोगों ने DNA सुना है? यस सर। यस सर। DNA। यस सर। इंसानों के केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में ऐसा DNA जैसा हो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, परंतु बेसिकली प्लांट्स में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अलग अलग प्लांट की विशेषताओं को क्या कर देंगे वो लोग, कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन। ठीक है। और उससे क्या डेवलप होगा, HYV सीड्स। HYV सीड्स डेवलप, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जैसे इस एरिया के जो लोग हैं, आप यहाँ के लोग मैक्सिमम कॉटन ग्रो करते हैं। यस सर, कॉटन। यस सर। तो जिन लोगों के आसपास में खेती बाड़ी है, आप लोगों ने कभी सुना होगा BT कॉटन, है ना। तो BT कॉटन बेसिकली क्या है, कॉटन की फसल के जीन्स में इस तरीके से चेंजेस कर देना कि जो नया बीज बनेगा उसमें क्या होगा,
उसमें बीमारियां कम लगेगी और प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। ठीक है। सो अब वो जो बीज है वो लेबोरेटरी में एक बार डेवलप कर लिया जाता है, फिर कुछ बीज से नए पौधे बनाएंगे, वो जो नए पौधे निकलेंगे उनसे फिर से बीज मिलेगा, जो बीज मिलेगा उसमें वो सारी वैरायटीज होंगी, वो सारी स्पेशलिटीज होंगी जो पहले HIV सीड्स में थी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, फिर sir. इस तरीके से Yes, एक sir. बीज से एक ग्रेन से नंबर ऑफ ग्रेन से मल्टीपल सीड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो फिर जो है साइंटिस्ट जो हैं फिर शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शॉप्स से कौन खरीद सकता है, फार्मर खरीद सकता है। ठीक है। सो अलग अलग वैरायटी के क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के। किसके, डिफरेंट वैरायटीज के। ठीक है। जैसे आप लोगों ने बासमती राइस खाया है? यस सर। बासमती राइस में भी नंबर ऑफ वैरायटीज होती है। बासमती राइस में भी वैरायटीज होती हैं। होती हैं। तो कुछ बासमती राइस की खुशबू ज्यादा अच्छी होती है, कुछ बासमती राइस में खुशबू के साथ साथ गेहूं के दाने की लंबाई भी ज्यादा होती है। तो जो बिरयानी खाते हैं ना, बिरयानी खाई है? यस सर। नो सर। yes, sir. बिरयानी खाते हैं। बिरयानी में जो चावल यूज होता है वो हाई क्वालिटी का काफी लंबे ग्रेन वाला बासमती राइस यूज होता है। समझ में आया? यस सर, ऐड भी आती Yes, है। sir. यस सर। एडवर्टाइजमेंट फिर भी इसलिए आता है। बिरयानी महंगा मिलता है। हाँ जी, बिरयानी महंगी मिलती है। चलो ठीक। सो द फार्मर्स इन दीज रीजन्स set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. The farmers in these region, यानी इन इलाकों में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, यानी जो स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा है, यहाँ पर फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स भी खुदवा रखे हैं, बहुत सारे एरियाज में कैनाल इरिगेशन भी है। दे आर यूजिंग HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी। इनमें से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या खरीद रखी है, फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी मतलब खेती में काम आने वाले मशीन्स व्हिच यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर है ना। ट्रैक्टर। तो कौन कौन से हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ठीक है, हार्वेस्टर है। सर एक और हार्वेस्टर में ही सब कुछ आ जाता है ना? अब देखो क्या होता है, हार्वेस्टर को बेसिकली क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है। कंबाइन का मतलब ये हार्वेस्टिंग भी करेगा, थ्रेशिंग भी करेगा। दो चीजें एक साथ कर लेगा वो। हाँ, बोला ना, एक महीने का काम कितने, एक दिन में। एक दिन में, ठीक। एंड बाय यूजिंग ऑल दीज दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट। इसको यूज करके फार्मर्स क्या करते हैं, हाई यील्ड ऑफ व्हीट, यानी ज्यादा क्वांटिटी में क्या ले लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, मोर प्रोडक्शन। ओके, दे आर गेटिंग मोर प्रोडक्शन। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
in Palampur, है ना, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. ठीक है, सो पालमपुर में जो ट्रेडिशनल वैरायटीज थी, कौन सी वैरायटीज बेटा? ट्रेडिशनल 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 वैरायटीज थी। ट्रेडिशनल उन ट्रेडिशनल वैरायटीज से 1 हेक्टेयर में कितना? 1300 kg, यानी क्विंटल में कन्वर्ट करें तो कितना? 13 क्विंटल। हाउ मच? 13 क्विंटल 13 क्विंटल 13 क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदा होता था। नाउ विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। जो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना शुरू किया तो उनके कारण क्या हुआ? इट इंक्रीज टू 32 क्विंटल। It increased to 3200 kg पर हेक्टेयर, यानी लगभग कितना? 2.5 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 2.5 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना। एंड 2.5 टाइम्स जो है वो बहुत होता है। 2.5 टाइम्स क्या है? काफी ज्यादा प्रोडक्शन है ना? 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। There was a large increase in the production of wheat. इस प्रकार wheat production में क्या हुआ? बहुत ज्यादा increase हुआ। ठीक है, farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. ठीक है, तो farmers अब क्या कर सकते हैं? greater amount of seeds, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल कहाँ बेच सकते हैं? मार्केट में। मार्केट। इतनी बात आई समझ में? सर ये Yes, खाने sir. के मुकाबले भी अच्छे ही Yes, होंगे ना sir. फिर? हाँ खाने में भी बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, क्या होता है, दो जो अभी साइंटिस्ट राइट नाउ जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रेजेंट स्टडी है वो ये जरूर बताती है कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स के कंपैरिजन में इस प्रकार की हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसी हैं? लेस हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी हैं? कम है। कम है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम क्यों हो रही हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो इसलिए है क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कारण, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज में थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, तो यदि आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज बेटर है, तो निश्चित रूप Yes, से sir. बेटा जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, ट्रेडिशनल सीड्स से जो चीज मिली है वो कंपैरेटिवली कैसी है? ज्यादा बेटर है। ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े आप। यस सर। So there was a sorry. ठीक, so now farmer had greater amount of seeds, ठीक है, surplus wheat to sell in the markets. यहाँ तक कंप्लीट हुआ? चलिए, now next just a minute, है ना, मुझे ये चेक कर लेने दो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा है? विल द लैंड सस्टेन। अगला सेक्शन कौन सा है? Will the land sustain? है ना? पूर्वा पारखी, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. बेटा इतने दिनों से कहाँ थे?
कहीं गए थे क्या? यस सर। कहाँ गए थे पूर्वा? सर चंद्रपुर। अच्छा, किसने बुलाया था? सर भाई ने। अच्छा, आपके ब्रदर चंद्रपुर में रहते हैं? यस सर। क्या करते हैं वहां पे? सर भाई छोटा है। तो छोटा भाई चंद्रपुर रहता है और आप यहाँ रहते हैं? सर अंकल का बेटा है। अंकल का बेटा है। तो जैसे आप यदि अंकल के घर गए तो चंद्रपुर में क्या मोबाइल नहीं रहते या नेटवर्क नहीं रहता बेटा? सर सब रहता है। हाँ, तो फिर क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करी वहां से? सर अटेंड की थी। देखो 23 अगस्त को आपकी एब्सेंट है ना? यस सर। 20 हाँ, 23 अगस्त का एब्सेंट लगा है। इसके बाद में 21 अगस्त का भी शायद, जस्ट अ मिनट, नहीं, ठीक है ना? सिर्फ एक दिन का एब्सेंट है ना? ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। अनुनय नंदगिरवार, गुड मॉर्निंग बेटा। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अनुनय, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Yes, sir. Good. वेरी गुड, है ना? चलिए, सो जस्ट स्मॉल रिमाइंडर फॉर यू। अनुनय, yesterday your present was 97%, वेरी गुड, बट उसके बाद की कहानी जरा गड़बड़ लगती है ना? डे बिफोर yesterday 30 मिनट्स था, है ना? उसके बाद में 21 तारीख को 21 को तुम्हारा प्रेजेंट जो था वो था 31 मिनट, ठीक है? अच्छा अनुनय ये बताओ, आपको अरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दिया अनुनय? हाँ सर, भेज दिया। अरे वाह, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। कल ही भेजा सर। हाँ कल ही भेजा सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ बेटा, कौन से टॉपिक पे भेजा है? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर। जरा तुम्हारे फ्रेंड्स से यही पूछो, क्या टॉपिक दिया था? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अनुनय नंदगिरवार रिपीट करो बेटा, क्या टॉपिक दिया था? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, तो तुमको क्या टॉपिक याद है कि नहीं है? अनुनय, यस सर। हाँ, टॉपिक क्या था बेटा? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा ये बताओ, तुमने ये पीपीटी जो मुझे भेजा है वो कहाँ से डाउनलोड किया था? सर पैम्पलेट डाउनलोड किया था नेट से। अच्छा, बाकी का सारा तुमने अपने मन से फोटो वगैरह कंप्लीट लगाए हैं? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। तो भैया ये वाला पैम्फलेट जो है ना, कहाँ से डाउनलोड किया था, थोड़ा भेजेंगे क्या हमें? सर आप बस गूगल पे टाइप कर देना, फ्री टेम्पलेट्स लिंक आएंगी, उसमें ही था सर। इतनी अकल तो मेरे पास भी है। तो तुम्हारे पास यदि ये पैम्फलेट डाउनलोड है ना, है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ वाला सर। पैम्फलेट जो है वो मुझे भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ओनली खाली पैम्फलेट, हाँ, ये सारे फोटोज नहीं आना ठीक है चाहिए। सर। अच्छा, अब दूसरी बात, आप नया वाला बनाएंगे ना अभी? हाँ सर। हाँ, तो टॉपिक क्या है?
members of Constituent Assembly. Members of Constituent Assembly of India. Got it, beta? Yes, sir. ठीक. Sir, did you got the PPT I submitted in PDF? Yes, बेटा. बट एक ही समस्या जो है वो क्या है है ना, वो प्रॉब्लम बस इतनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो फ्रीडम फाइटर हैं, सॉरी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, वो रिपीटेड हो रहे हैं, है ना। तो ये सर कॉन्सेप्ट आखिरी के 3-4 बस रिपीट थे मेरे, वो BR अम्बेडकर, राजेंद्र, बाकी के तो मैं थोड़े नए नए ज्वाइन किए थे मैंने ऊपर। हाँ देखो, अब तुम्हारा ही देखता हूँ, जैसे राज बहादुर है वो रिपीट हो चुके हैं, अमृत कौर रिपीट है, HC मुखर्जी नंबर ऑफ टाइम्स। जो न्यू था, न्यू है P कक्कन, NG रंगा, सत्यनारायण मोतुरी, बलवंत राय, ठीक है, PS देशमुख, रमन शंकर, हसरत मोहानी, इतने नए वाले थे, ठीक है। फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा, हाँ ये रिपीटेड नहीं थे, ठीक, चलिए गुड। और तुम्हारा जो टेम्पलेट था वो भी बड़ा शानदार लगा मुझे, है ना। चलिए सर आई वाज सर्चिंग फॉर मोर न्यू, पर उसके फोटो कभी नहीं मिलते, कभी बहुत छोटी इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसलिए। हाँ 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 ठीक है, ओके चलिए। सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काइंडली सेंड योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने ये सारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अपने पास सिस्टम में सेव रखना, समझ में आया? ओके सर। सर मैंने भी खुद ही बनाया था, मैंने सिर्फ टेम्पलेट डाउनलोड किया था। मुझे यदि बाय चांस कुछ मेरे मोबाइल से डिलीट हुआ, कुछ हुआ, तो समटाइम्स आई मे रिक्वायर्ड इट अगेन, ठीक है। सो अपने ये सारे PPTs सेव रखना अपने पास। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. सर Yes, sir. Good. चलिए, thank you. So we are winding up today's session here only. So that's all for live class. Thank you, students. Sir, please send Q&A Thank of you, sir. second chapter of Constitution Design. Question and answers for civics chapter 2. Okay. ठीक है बेटा, I'll send it. है ना? So thank you.